has written a letter to Rahul Gandhi to return letters written by India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. In a letter dated 10th December, PM Memorial member Rizwan Qadri wrote to Rahul Gandhi urging him to return the original letters taken by Sonia Gandhi in 2008 or provide photocopies or digital copies of the same. These letters were originally entrusted to the Nehru Memorial Museum and Library in 1971. However, they were reportedly packed into 51 boxes and sent to Sonia Gandhi in 2008. The collection includes correspondence between Nehru and several prominent figures, including Edwina Mountbatten, Albert Einstein, Jayaprakash Narayan and others. Let's listen in to what Mr. Qadri said. मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए। हमने जब सोनिया गांधी जी को रिक्वेस्ट लेटर भेजा, ईमेल भेजा था, उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया था। राहुल जी को भी भेजे, आज 3 दिन हुए, उनकी तरफ से भी ईमेल का प्रत्युत्तर नहीं है। उसी तरह हमने उनको पोस्ट से भी लेटर भेजा है। आशा करते हैं कि विपक्ष के नेता के नाते इस इशू के अंदर वो दखल देंगे और संशोधकों के लिए, हमारे जैसे जो काम करते हैं, उनके लिए ये चीज़ उपलब्ध कराएंगे। Now, the BJP has raised questions regarding missing letters written by India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. The BJP has accused Sonia Gandhi of deliberately hiding these letters. Listen in. See, it's astonishing, it is quite intriguing that what today we call as a Prime Minister Museum and Library, what in the yesteryears were called as the Nehru Museum and Library, in fact it possessed the letters written by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, to Lady Edwina Mountbatten, to Jayaprakash Narayan ji, amongst other leaders of the world. So what was the reason that just before the decision of digitization of this letter in 2010, all these letters, otherwise they would have come to the public domain, they were retrieved by the Congress party and particularly Mrs. Sonia Gandhi. What was in the letter between Nehru and Edwina Mountbatten? What was the communication between Jayaprakash Narayan ji and Nehru ji? Was something which is of historical importance and the nation has every right to know it. And that's the reason as to why these letters were in government possession. Now, in the AGM of the meeting of the PMML member, Mr. Qadri, Rizwan Qadri, a known historian, has letter written to Rahul Gandhi. He has written in this letter that Mr. Rahul Gandhi should cooperate and should ask the then UPA chairperson Sonia Gandhi to return these letters to where it belongs to, that is the Prime Minister's Library and Museum. But now the Congress has demanded action against Rizwan Qadri. Congress is also questioning why the letter was sent to party leader Rahul Gandhi instead of his mother Sonia Gandhi, who is also a member of parliament. The Congress has called it a political agenda aimed at diverting attention from the real national issues. Listen in. सर, रिजवान कादरी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी के मेंबर हैं। उन्होंने राहुल जी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि नेहरू जी के जो वो लेटर जो कि सोनिया गांधी के पोजीशन में है, उनको मेमोरियल में लाके पब्लिक करना चाहिए। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोनिया जी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल जी के बारे में राहुल जी को लिखने का क्या मतलब है? सीधे सोनिया जी को लिए ये सारा का सारा पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा है, अडानी के ऊपर चर्चा ना करें, अडानी के ऊपर देश बात ना करें, देश को बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर चर्चा ना हो, बस आप नई नई बातें करते रहिए। This is a continuous diversionary tactics. Every morning, BJP tries a diversionary tactic to divert from the real attention of Modi Adani scam. Today's menu is this thing of the Nehru letters. Nehru letters will be with the Nehru family only, not with the Godse family. And Godse families will always be eager to defame Nehru's legacy. We had seen Godse Bhakts doing the same thing against Gandhiji and Nehruji for years together. They had been trying for around more than 80-90 years. They had been failing again and again. India knows the truth, and we all know that this kind of diversionary tactics won't be acceptable. Letters which have been in the public sphere,
which are relevant to the public have already been in the public sphere. So there's no point in asking for the letters back. Only the private letters were taken back, which were the family letters. But the public letters have already been published in various books. They are already in the public sphere. You can obviously see them on Google as well. And many of the the members of the parliament have quoted the letters on the floor. So it's already in the public sphere. There's no point in asking for them back. Well, Rizwan Qadri has spoken 2 times now, and Rizwan Qadri is alleging that history is deliberately being hidden. That's the charge. Listen in. 4 महीने 2 चिट्ठी पहले सोनिया गांधी को लिखी गई, फिर 10 दिसंबर को राहुल गांधी जो विपक्षी नेता है उनको लिखी गई। लेकिन राहुल को जो चिट्ठी लिखी गई उसका मुद्दा संसद तक गुंजा है। हमारे साथ रिजवान कादरी जी मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि रिजवान भाई 4 महीने हो गए, 2 चिट्ठी लिखी, कोई रिप्लाई आया? जी नहीं, किसी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर आया नहीं है। आज संसद में आपका मुद्दा गुंजा है, अब उम्मीद है कि गांधी परिवार की आंखें खुलेगी और आपको कोई रिप्लाई करेगा? आशा रखते हैं। मेरा काम संशोधन करना है और संशोधन कार्य के माध्यम से राष्ट्र का जो इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, तटस्थ इतिहास है, वो एज इट इज रखना है। जैसे ये दूसरी चिट्ठी है, अब तक कोई रिस्पांस आया नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर छुपाया जा रहा है। जो इतिहास नेहरू से रिलेटेड म्यूजियम में था वो तब हटा दिया गया जब उसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदलकर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया, और सिर्फ ये इसीलिए हटाया गया ऐसे लग रहा है? जी नहीं, ये चीज़ें 2008 में हटाई गई है और 2008 में जो कलेक्शन अभी तक नेहरू पेपर्स का पार्ट था वो कलेक्शन उसको बाइफरकेट किया गया, यानी प्रधानमंत्री का ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस और उनके पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो पूरा कलेक्शन का ही दोनों एक पार्ट थे 2008 मार्च महीने तक। और उसके साथ साथ मैंने एक ये भी डिमांड किया है कि नेहरू पेपर्स में बहुत सारा मिसिंग देखने को मिलता है, कुछ चीज़ें हमको गायब हुई हुए ऐसा देखने को मिलता है। तो मैंने भी देखा था एक बुजुर्ग व्यक्ति पेपर श्रेडर मशीन से पन्ने फाड़ दिया करते थे, तो हमारा उसके बारे में डिमांड ये था कि इन पेपर्स का फॉरेंसिक ऑडिटिंग हो, तो किन फाइलों में से कितने पन्ने फाड़े गए हैं, क्यों नष्ट किए गए, उसके पीछे का मकसद क्या है, उसकी भी इंक्वायरी हो। तो इसके बारे में एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फॉर्म की गई थी, उस दिशा में भी काम किया गया है। हमारी एजीएम के दौरान कुछ सदस्यों ने ये कहा कि ये कलेक्शन जब डोनेट कर दिया गया है, बरसों तक इसी कलेक्शन का पार्ट रहा, तो ये कैसे ले जा सकते हैं, तो इसके बारे में लीगल ओपिनियन लिया जाना चाहिए। तो उस दिशा में भी हमारे सम्मानीय सदस्यों के अनुरोध पर उस दिशा में भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कार्यवाही की गई हैगी। आपने जैसे जिक्र किया कि एक बुजुर्ग पेपर सेट से उन सारे पन्नों को फाड़ रहे थे, यानी कि जानबूझकर ही छुपाया जा रहा है। आपको उम्मीद है कि जो 51 बक्से जितने भी खत करीब 8, 9, 10 लोगों से जुड़े हैं जो पंडित नेहरू जी के हैं, वो अब तक सुरक्षित होंगे? सुरक्षित ही होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसकी महत्ता सबको पता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो 2008 में क्यों विड्रॉ होते, वो अभी भी वहीं पर होते। आज तो सभी चीजें सार्वजनिक की गई है। जो 21 जितना कलेक्शन क्लोज था, जो नहीं दिखाया जाता था, वो कलेक्शन भी आज ओपन कर दिया गया। आज ऑलमोस्ट थोड़ा सा एकदम माइनर जो कलेक्शन है वो कलेक्शन ही क्लोज रखा गया है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कलेक्शन है। उसके अलावा सभी चीज़ें ओपन कर दी गई है। आने